Hello everyone. Today in this video, we are going to discuss about all the documents that you should keep handy at the time of filing your income tax return, aka ITR. Many of us find it so confusing to what documents we need to have at the time of filing ITR. This video will surely going to help you. Let's first understand what is meant by an ITR. ITR एक स्पेशली डिजाइन टैक्स फाइलिंग फॉर्म होती है जो हर एक टैक्स पेयर को एट द एंड ऑफ देयर फाइनेंशियल ईयर एंड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड डेट ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भरनी होती है. कमिंग टू व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइलिंग ITR की हेल्प से एक इंडिविजुअल अपने सारे एसेट्स और इनकम की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर कर सकता है. उस पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो इंडिविजुअल टैक्स लायबिलिटी बनती है वो जान सकता है और रिफंड के लिए क्लेम कर सकता है अगर उस पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में उसने जितना इनकम टैक्स पे कर दिया है वो ज्यादा है उसकी एक्चुअल इनकम टैक्स लायबिलिटी से. नाउ अ क्वेश्चन कैन कम इनटू योर माइंड दैट व्हेन वी शुड फाइल आवर ITR can be filled before the date of 31st of July of the assessment year. And what is an assessment year? Assessment year is the year preceding to the financial year you are filing your ITR for. Coming back to all the documents that you need to have at the time of filing ITR, it can be broadly divided into two parts. One is some basic documents जो आपके पास हमेशा अवेलेबल होंगे and the other one is some specific documents जो at the time of filing ITR आपको अरेंज करने पड़ेंगे. शुरू करते हैं कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स के साथ जो आपके पास हमेशा होते हैं, जिसमें पहले दो हैं पैन कार्ड और आधार कार्ड. पैन कार्ड आपके सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसमें टैक्स इन्वॉल्व है उनको ट्रैक करता है और आधार कार्ड आपके बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डिटेल्स को शेयर करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ. मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट यू नीड टू हैव, all your active bank account details need to be declared at the time of filing your ITR form, and one primary bank account need to be selected जहां पे आपके सारे रिफंड ट्रांसफर किए जा सके. नेक्स्ट यू नीड टू हैव all the details related to your rental income, foreign income and dividend income if received. In rental income, you need to have all the receipts of your rental income that you have received in that financial year. और अगर आपने कोई रेंट पे किया है उस फाइनेंशियल ईयर में और आप चाहते हो कि उस अमाउंट पे आपको डिडक्शन मिले तो आपके पास उन सारे मंथ्स की रिसीट होनी चाहिए रेंट रिसीट की फॉर्म में. Any income received from the foreign land is termed as foreign income and ITR भरते समय आपको उस foreign income पे भी टैक्स देना पड़ता है. तो you need to disclose all the amount that you have received from foreign land as foreign income at the time of filing ITR. You need to also disclose all the income earned as dividend from investment in shares and mutual funds. They are also taxable and should be disclosed at the time of filing ITR. Now, let's talk about some specific documents that you need to arrange at the time of filing ITR. The first one is Form 16. It is also known as your salary certificate. It is provided by your employer. Form 16 में आपके सैलरी के सारे कंपोजिशंस, सारे परक्यूजेस, सारे अलाउंसेस रहते हैं. साथ में आपके उस फाइनेंशियल ईयर के सारे टैक्स डिडक्शंस रहते हैं. फॉर्म 16 दो पार्ट में होता है. पार्ट ए आपके सारे टीडीएस रिलेटेड डिटेल्स कंटेन कर रहा होता है और पार्ट बी आपकी सैलरी के सारे कंपोजिशन जैसे कि आपके परक्यूजेस और अलाउंसेस को कंटेन कर रहा होता है. अपार्ट फ्रॉम फॉर्म 16 यू शुड ऑल्सो हैव फॉर्म 16A, 16B and 16C फॉर ऑल द इनकम रिसीव्ड अपार्ट फ्रॉम सैलरी. फॉर्म 16A is for any income received against recurring deposits or fixed deposits. Form 16B is for any income received against sale of property. And Form 16C for any TDS deducted on rent. Next is Form 26AS, which is also called Annual Tax Statement or your Tax Passbook. Form 26AS में आपके TDS से रिलेटेड सारे डिटेल्स होते हैं जैसे कि आपके टैक्स जो आपके एम्प्लॉय डिडक्ट करते हैं या आपका बैंक डिडक्ट करता है या कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन डिडक्ट करता है. इन सारी डिटेल्स को फॉर्म 26AS कैच करता है. नेक्स्ट इज ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू योर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर्स. किसी फाइनेंशियल ईयर में इन ऑर्डर टू रिड्यूस योर टैक्स लायबिलिटी अगर आपको कोई टैक्स डिडक्शन क्लेम करना है तो उससे रिलेटेड आपको कोई इन्वेस्टमेंट या कोई एक्सपेंडिचर दिखाना पड़ेगा और उस पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर के लिए जो रिसीट होगी आपके पास फाइनल वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू क्लेम रिडक्शन ऑन दैट एक्सपेंडिचर ऑन दैट इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट इज डिटेल्स रिगार्डिंग योर होम लोन सेटलमेंट. अगर आपने किसी फाइनेंशियल ईयर में कोई लोन लिया है
और आप चाहते हो कोई डिडक्शन क्लेम करना उस लोन पे, तो आपके पास उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट होने चाहिए एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर ITR. Next is all the details regarding your capital gain. Any income generated from selling capital assets is known as capital gain. You need to disclose all the amount generated from capital gain when you are filing ITR. Capital gain can be either short term or long term. Both are taxable up to some extent. I hope this video will save you from a lot of chaos at the time of filing ITR. Kindly share your valuable feedback and suggestions. We will come back with more videos on finance and income tax. Stay tuned. Thank you.